we have to select 4 shoes out of 10 pairs of shoes one by one without replacement, right? One by one without replacement, find number of ways, right? Find number of ways. We have to select 4 shoes out of 10 pair of shoes, one by one, right? One by one without replacement, right? Find number of ways. Right? The same question will solve in 2 different ways, right? 2 different ways. First, right, when I'm saying one by one without replacement. And second question, we have to do the same question. The second, we have to do all 4 shoes at a time. तो मैं क्या कंसेप्ट आज क्लियर करना चाह रहा हूं, आई होप यू ऑल आर गेटिंग what is the difference in these two when I'm saying you have to select 4 shoes, right, out of 10 pairs in such a way, right, all 4 are, you have to take all 4 at a time, and second time, first time you are saying you have to take one by one without replacement. First time you are getting one, just throw it out, then going for the next one, then the third one, then the fourth one, right? So in how many ways, what is the difference in both the question and how we can solve both the questions, right? Take your time. Maximum 3 minutes. Sir, what does without replacement means? विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स ना बेटा कि मेरे पास 10 पेयर ऑफ शूज है, एक शूज में लिया उसे बाहर फेंक दिया, ठीक, फिर कोई भी दूसरा उठाया उसे बाहर फेंक दिया कि सर वो चारों जो शूज मैंने बाहर फेंके हैं कोई भी पेयर का नहीं फालतू फेंक दिया सब। Okay. सर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना, लाइक हम एक लाइक 2 शूज एक ही पैर के नहीं हो सकता? नहीं ऐसा नहीं ना? वी आर नॉट गेटिंग लाइक, राइट, हाँ मतलब वो तो कंडीशन है ही कि ऑल 4 आर फ्रॉम डिफरेंट, ऑल 4 आर डिफरेंट शूज, ओके, गॉट इट सर. not only select for random. The 2 shoes cannot belong from the same pair. Yes. Sir, I've sent the 9C4 नहीं बेटा, कुछ और लगेगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें।
सर मैंने आंसर भेजा। नहीं 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 आ रहे हैं, मैं फिर से last 2 minutes. सर मैंने भेजा। सर मैंने सेकंड पार्ट का भेजा। सर दोनों क्वेश्चंस का भेजा। आइए डिस्कस करते हैं, राइट? सबसे आसान रहेगा। प्रत्यूष, सर मैं क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ। क्वेश्चन सिंपल वाला है बेटा, आपने किया हुआ है क्वेश्चन ये। Now 4 shoes we have to select out of 10 pair of shoes. In such a way we are not getting any pair, right? And it is given that the first condition, without replacement you are selecting 4 shoes, and second condition you are saying ki like you are selecting 4 shoes all at a time, right? So Utkarsh, why you are writing 10C? क्या था बेटा, क्या लिखा आपने, कहाँ चला गया? Yes, 10C6 into 2 to the power 4. What is the meaning of this? 10C4, I guess. You want to write into factorial 4. So 1 minute. सही जा रहा है, काफी काफी अच्छा अप्रोच है तेरा। Yes sir. हाँ मतलब यू आर गोइंग गुड। लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो इसको अपने। So first we can choose the first shoes, then the second and then third. हम्म और फिर fourth I guess. वैसे किया। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करो अपनी बात को बेटा। So first out of the 10 pairs of shoes we can choose one shoes. हम्म Okay. That can be selected either the left or the right pair. So that will be 10C1 into 2 factorial. Then that will be multiplied by 9C1 into 2 factorial multiplied by 8C1 into 2 factorial into 7C1 into 2 factorial. वैसे किया What था। when you are saying कि you are selecting one by one without replacement, Yes sir. or one by one without replacement? Yes. Okay, तो first shoes you are saying कि this is what, 10C1 into 2 to the power 1, Yes then sir. 9C1 into 2 to the power 1, Yes sir. 8C1 into 2 to the power 1, and 7C1 into 2 to the power 1. Something like this. Yes sir. Not bad, not bad. सर मुझे अभी पता चला मेरा पहला मिस्टेक जो था। सर Mhm. मैंने 9C4 गलती से लिया था, बिकॉज मैंने सोचा कि वो पिछले वाली में मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इसमें पैड्स लिया था, इसमें पैड्स नहीं लिया था, तो हम लोग का वो 10 रहेगा जो रहेगा। True, true.
See. So this 1 by 1 without replacement, see carefully na, what we are saying कि first shoes is we can select by 20C1. First shoes मैंने select कर लिया 20C1 से, right? अब जो first shoes मेरे select हो गए, मैं बोल रहा हूँ उसका pair मैं नहीं लेता. So how many options we have now? Sir, 18. 18. 80 Now the second will be by 18C1. अब ये दोनों के पेयर मैंने छोड़ दिए. अब कितने शूज बच गए? 16 फिर 14 Then 14C1. Is this okay? यस सर ये फर्स्ट ही चल रहा है, राइट? वही है. हाँ, तो उत्कर्ष ने बड़े अच्छे सॉल्व किया इसे. 10C1 into 2 to the power 1, राइट? इट्स द सेम थिंग. अगर ध्यान से देखो दोनों सेम है. Yes, sir. दोनों तो सेम ही चीज हाँ आ सर दोनों सेम ही है बिकॉज 10C1 into 2 is 20C1 only रहा है. ये नंबर को एक साथ रखो. बट लेकिन अभी रुकना, क्योंकि हम लोगों को कंसेप्ट अपने अच्छे करने हैं. तो कंसेप्ट अच्छे करने के लिए थोड़े से वर्किंग हम लोग को और अच्छी करनी पड़ेगी. क्या देखो, मैं क्या करता हूं कि मैं 10C4 से 4 पेयर सेलेक्ट कर लिया. वो 4 पेयर से 2 to the power 4 करके मैंने एक शूज ले ली. व्हाट आई एम सेइंग ना, 10C4 से मैंने 4 जो हमारे पास थे, राइट, 4 हमने शूज सेलेक्ट कर लिए. वो 4 शूज जो सेलेक्ट कर लिए, राइट, 4 पेयर जो सेलेक्ट कर लिए, हर एक में मेरे पास 2 ऑप्शन थे. तो 2 to the power 4 से मैंने इसे ली थी, राइट. तो 2 to the power 4 मेरे पास ही आ गया. इज दिस ओके? लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, वो सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? कि मैंने ही बार 4 के select 4 शूज को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, राइट, जबकि ये अलग अलग करना था. तो 4 शूज जो मैंने एक साथ सेलेक्ट किए हैं, राइट, 4 शूज एक साथ जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? 4 शूज मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिए, राइट. अब ये 4 शूज जो हैं अगर अलग अलग होते तब तो कहानी मेरी डिफरेंट होती. नहीं, अब ये 4 शूज एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि 4 शूज आपस में कितने तरीके से अरेंज हो रहे होंगे? 4 factorial. 4 फैक्टोरियल. तो वो 4 फैक्टोरियल मेरा गलती हुआ है. मैंने कहा कि वो 4 फैक्टोरियल को मैं वापस कर देता हूँ क्वेश्चन को. ये भी वही आंसर है जो आंसर आपके राइट ऊपर आ रहे हैं. जो आंसर आ रहे हैं वही आंसर यहाँ भी आ रहे हैं. सर आपने इंटू 4 फैक्टोरियल क्यों किया? मैंने गलती की. क्या गलती की? मैंने गलती ये की कि मेरे को क्वेश्चन में बोला था यू हैव टू सेलेक्ट 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. बट मैंने क्या किया, 10C4 से सबको साथ सेलेक्ट कर लिया. तो मैंने बोला गलती रियलाइज किया, यार ये तो गलत वाली बात हो गई. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग ऑल द 4 शूज ऑल एट ए टाइम. बट व्हाट आई हैव टू डू दिस बाय 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. So both the cases are different, right? So what is the difference in both the cases? दोनों केस में डिफरेंस क्या है? ऑर्डर का डिफरेंस होगा. ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है. तो व्हाट इज द डिफरेंस? ऑर्डर क्या? तो 4 शूज के ऑर्डर. तो 4 शूज के जो ऑर्डर है कितने तरीके से हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल. वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. मैंने बोला कि जो मैंने पहले गड़बड़ किया था उसको यहाँ पर मैंने सुधार दिया. इज दिस ओके? तो सर लाइक मैंने आपको आंसर भेजा था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया 1 and 2 को. उसमें भी यही चीज है, लाइक आंसर सेम ही आ रहा है. क्या? हाँ, 2 to the power 10 में. नहीं, फर्स्ट वाला नहीं सर, सबसे लास्ट वाला जो मैंने भेजा था. 2 नहीं, आंसर सेम नहीं आ रहा, बट लाइक इसमें गड़बड़ क्या है? 2 to the power 4 वो. हाँ, उसके नीचे वाला. अच्छा, 3 आंसर भेजा ना. अरे नहीं सर, वो 2 और 1 का थोड़ा हो गया. क्या आंसर लास्ट में है? हाँ, यहाँ है 2 to the power 4 into 10. दिस यू आर सेइंग, यही ना? यस. हाँ सर, मतलब एक्सप्लेन करो प्लीज. सो बेसिकली मैंने किया लाइक अगर 4 शूज है, आई मीन सॉरी 10 पेयर है, तो मैंने हर एक इसमें से लाइक 4 सिलेक्ट करने हैं, राइट? तो 2C1 से मैंने सिलेक्ट किया कि इसमें से एक पेयर आएगा, एंड देन इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 10 शूज है. सो यही सोच के किया. क्या लग रहा है? कोई आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा इस बात को? क्या लग रहा है? एक बार फिर से बोलो, सब लोग सुनेंगे ध्यान से.
तो बेसिकली लाइक 4 प्लेसेस फिल करनी है मुझे। तो वो 4 प्लेसेस में से मैं कोई भी एक मतलब एक पैर में से शूज लूंगी, तो वो एक ही कंसिडर करूंगी मैं बेसिकली। सबसे पहले वो 4 प्लेसेस किससे फिल करने? शूज से, एक एक, Shoes। हर एक पैर में से कोई एक शूज। वो कहाँ सेलेक्ट है? हाँ, वो नहीं किया। अपने आप आ गया। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था? टेंसी। सिलेक्ट करना, टेंसिव, यस। जैसे टेंसी 4 किया, उसके बाद व्हाट यू आर सेइंग इज ओके, गॉट इट सर। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट? सो अब वो अपना क्वेश्चन आंसर खुद से बात करने पर ना अपने आप वहां पर मैं पहुंच जाऊंगा, राइट? तो नो वरी, ठीक है, ओके। तो ये तो तब की बात हो गई व्हेन वी आर सेइंग कि वी हैव टू सेलेक्ट, राइट? 4 शूज हमें सेलेक्ट करना है, एंड ये 4 शूज सेलेक्ट करना है, एंड वी आर सेइंग कि लाइक दिस वी हैव टू, लाइक दिस इज डन। अरे कैमरा ऑन करो यार, मेरे को लग रहा है मैं किसको बोल रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा, सबके कैमरा ही ऑफ लग रहे हैं यहाँ पर। गजब हाल है। स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज। रीना, तन्मय, दारुण, हाँ। सो what is the second case? What is the second case? Right? In second case, when you have to select all the 4 all at a time, then what you have to do? 10c4 into 2 to the power 4. Sir, remove 4 factorial. Very good. Remove 4 factorial. That's it. Right? Remove 4 factorial. That's it. Is this okay? Okay, everyone. ठीक है ना? So only the difference is you have to give the order or you are not giving the order. If you have to give the order, you are multiplying with the number. You are not giving the order, you are not multiplying. But कहानी में थोड़ी सी twist, right? Now इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं। ये कंसेप्ट पहले क्लियर है सबको? ओके एवरीवन? यस सर। सी, right? We have to select 4 shoes out of this blah blah blah. We want in this case one pair must be there included, right? One pair must be included in these 4, and the condition is you are selecting the shoes one by one without replacement. You are selecting the shoes one by one without replacement. काव्यम, यस सर। हाल चाल, कहाँ है तू? सर अभी कल घर पे ही हो। सर कल बाहर था इसीलिए अटेंड नहीं कर पाया। तो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने भेज दिया है ना? ओके सर। सर ये एटलीस्ट वन प्लेयर होना चाहिए। Exact one pair out of these 4 shoes, बेटा। Conceptually, you have to be good, right? दोनों केस कर लो आप, all at a time, right? And one by one without replacement.
हम्म ओके 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 आंसर प्रत्यूष दारुण दारुण केयरफुल बेटा हाँ ट्रैवलिंग करते वक्त आंसर्स स्टेशन पे हूँ बस। केयरफुल बेटा केयरफुल ना Yes, प्रत्युष sir. ओके ओके तो ओके जेना आप आंसर करना चाहो मतलब लॉजिक देना चाहोगे आप अपना सो बेसिकली मैंने एक पेयर सिलेक्ट कर लिया 5 पेयर्स में से और इसको साइड में रख लिया। उसके बाद जो मेरे पास बचे हुए शूज है। 10 पेयर्स थे ना हाँ, अच्छा सॉरी सर। तो ओके 5 पेयर पे बात कर लेते हैं नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम अ, ठीक है सर मतलब। मैंने आंसर दे दिया उसका। आपके शूज देखो 10 यहाँ पे ये सर 5 वो सेलेक्ट कर लिए हैं नहीं सर, वो 10 वही रखते हैं, 10C1 ही रखते हैं। 10C1 था चलेगा लेकिन 5 हाँ, सेलेक्ट हो गया है मैं उसके लिए वो पॉइंट आउट कर रहा अच्छा। हूँ 10C1 मतलब 2 शूज लिया वहां पर हम्म। 18C1 से 1 आया हाँ 16 तो वो गड़बड़ कर दी मैंने, वो लास्ट का टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, बस वो बीच के दो बचेंगे पहला। यस आर्यन बोले प्लीज सर मैंने अपना आंसर दे दिया है चैट में। क्या लॉजिक है बताएं बेटा सर तो हम लोग के पास 10 पेयर्स है विच बेसिकली मीन्स 20 शोज, तो हम लोग को 10 पेयर में से एक पेयर तो लेना ही होगा। तो हम लोग 10C1 कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग के पास 18 शूज बाकी रहेंगे। तो हम्म फिर 18C1 कर सकते हैं, फिर उसका हमको पेयर नहीं चाहिए तो हम लोग एक शूज काट देंगे उसमें से, और फिर 16C1 कर सकते हैं। नॉट बैड बट यहाँ पर एक मिनट और लोगों का भी देख लूं मैं अरुण को जाने दो अभी प्रत्युष फिर से सर 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 मैंने पहले एक पे एक चूज किया 10 में से, जो जिसका दोनों पैर लेना है, लेफ्ट और राइट। उससे 10C1 आ गया। फिर बचे हुए 9 जो पैर्स है हम्म उसमें से दो पैर चूज करेंगे हम्म और उस टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट चूज करे या राइट चूज करे दो ऑप्शन है। ओके और उसको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे। ओके 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 लेकिन एक पंगा आ रहा है बेटा चलो पहले उत्कर्ष से भी ले लेता हूँ उत्कर्ष आप भी बता दो बेटा तो पहले 10 पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट कर लेंगे, देन वी विल बी लेफ्ट विद 9 पेयर्स, सो वी कैन सेलेक्ट एनी वन, आई मीन एनी वन ऑफ द any one shoes from the 9 pairs, and it will be this multiplied you are by 2 solving this you are factorial, solving for all you have to take all at a time or this one by one without replacement this one is by the one. one by but try to understand everyone try to understand this thing now all you all are saying that you are selecting the pair of shoes by 10C1 ways but you are not sure ki in what position you are getting the pair you are selecting first shoes second shoes third shoes and fourth shoes may be possible the first shoes is here and second shoes the pair of first shoes is here एंड ये सेकंड शूज ये थर्ड शूज हो बट यही वाली चीज क्या ये दोनों सेम केस है ये फर्स्ट आया फर्स्ट का पेयर यहाँ आया ये सेकंड आया ये थर्ड आया क्या दोनों सेम केस है या डिफरेंट केस है नहीं सर, डिफरेंट। डिफरेंट केस है अब इसमें कितने केसेस बनेंगे हाँ दिस इज नॉट द केस ना कि व्हेन यू आर सेइंग कि ऑल द केसेस आर सेम सो 10C1 से मैंने एक पेयर सेलेक्ट अरे कैसे कर सकता हूं मैं मेरे को तो 1 by 1 सेलेक्ट करने थे मैं दोनों को डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पोजीशन दोनों की अलग अलग है अरे ऐसे समझो ना कोई बंदा आया वो बोल रहा है कि भैया मेरे को जूते दे दो ठीक है तुमने एक जूता उठाया फेंक दिया उसका पेयर वाला नहीं लिया दूसरा जूता उठाया फेंक दिया वो बेचारा गरीब लेके चला गया अब वो उधर जाके देख रहा है कि दो जूते दिया दोनों अलग अलग राइट वो क्या पहनेगा बताओ हाँ चाइनीज वाला जूता हो तब भी चल जाएगा नहीं चाइनीज वाला वो लेफ्ट राइट दोनों सेम रहता है ना आई डोंट नो आप लोग देखे ही हो गया जैकी सर चैन मूवी देखे हो जैकी चैन की पुरानी वाली मूवी
हाँ सर। हाँ, तो जैकी चैन की मूवी में देखे होगे वो शूज दोनों सेम ही रहते हैं, लेफ्ट और राइट। हाँ। हम्म सर हम्म बट हम लोग एंड में उसे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, तो हम हर एक पॉसिबल ऑर्डर तो हम लोग अकाउंट कर रहे हैं उसके लिए, तो फिर क्या एरर होगा? सी, अगर मैं बोल रहा हूँ 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जो फर्स्ट शूज, राइट, मैं मतलब ऑलमोस्ट जो मेरे को पेयर चाहिए, तो ये लेफ्ट और राइट मैं दोनों को अलग अलग मान के ही चल रहा हूँ कि एक लेफ्ट है एक राइट। उसके पेयर को मैं डिस्टिंग्यूश नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। कि अगर आप बोलो कि नहीं सर, कि लेफ्ट एंड राइट बोथ आर डिफरेंट शूज, तो आई हैव टू टेक द फर्स्ट शूज इज लेफ्ट एंड सेकंड शूज इज राइट, सो ऑल द वे दिस इज इन द फैक्टोरियल 4 वेज दिस इज अरेंजिंग। बट थोड़ा सा मतलब लगता है कि पेयर ऑफ शूज में क्या मुझे लेफ्ट और राइट पर ये फ्रीडम मिलना चाहिए क्या, कि वो लेफ्ट है राइट है, या मुझे ये बोलना चाहिए कि ओके मतलब बोथ द शूज आर सेम, सो प्लेसिंग जो है उसकी ऑर्डर की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। आई डोंट नो। तो क्या हम लेफ्ट एंड राइट को आइडेंटिकल मान रहे हैं? लेफ्ट और राइट आइडेंटिकल तो नहीं बोलूंगा, बट ये बोलूंगा कि दोनों मिलके मेरे लिए एक पेयर कंप्लीट सेट बन जा रहा है, राइट। कंप्लीट सेट वो बन जा रहा है। सो लाइक इन दिस केस, लाइक आई एम सेइंग कि राइट, फर्स्ट मैंने अगर फर्स्ट एक पेयर मैंने कोई भी एक शूज 20C1 पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। सेकंड पर ही मैंने सेलेक्ट किया इसका पेयर, तो दिस इज 20C1 इंटू 1C1, राइट। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव नाउ? अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? अब मेरे 18 पास से क्या ऑप्शन है? 18C1 इंटू 16C1, first case. Second case, I am saying कि this is happening 20C1, 18C1, 1C1, 16C1, and third case 20C1, 18C1, 16C1, 1C1, and fourth case 20C1, 18C1. I'm getting pair of this, right? जो सेकंड पोजीशन पर आया वो पेयर मेरे को 1C1, 16C1, right? 20C1, 18C1, 16C1, 1C1, right. 6 is 20C1, 18C1, 16C1, 1C1. I guess altogether I'm getting this. Right, so I can say that these three are arranging in factorial 3 ways, not the complete 4. ये समझ में आया सबको? Is this okay? सो बट मेरे को एक डाउट था। हम्म आई मीन उसका मतलब सेम ही रहेगा कि अगर मैंने पहले कोई भी 3 रैंडमली पेयर सेलेक्ट करके जो बचे हुए शूज है, जो पेयर्स बचे हैं, हम्म उनमें से मैंने एक पेयर सेलेक्ट किया, लाइक सॉरी स्टार्टिंग में मैंने कोई भी 2 शूज सेलेक्ट किए हैं कोई भी रैंडम पेयर से, एंड देन लास्ट में जो 18 पेयर्स बचे हैं उनमें से मैंने कोई एक पेयर सेलेक्ट किया, तो उसका मतलब लाइक वो सब वो जो केस है वो इसमें इंक्लूडेड है। सॉरी, एक बार फिर से। सो सपोज मेरे पास 10 पेयर्स है, राइट? हम्म तो मैंने उनमें से कोई भी रैंडमली 2 शूज सिलेक्ट कर लिए। पहले 2 नहीं कर सकता, मेरे को तो एक ही शूज सेलेक्ट करने हैं ना, 1 by 1 ही तो मेरे को जा रहा हूँ। हाँ बट ठीक है, मतलब मैंने पहले एक ले लिया फिर दूसरा ले लिया फिर लास्ट में जो मेरे पास 8 पेयर्स बचे हैं उनमें से मैंने एक पेयर सिलेक्ट किया, वैसा नहीं कर सकता? एक पेयर बचा है मीन्स 8 पेयर्स बचे हैं मेरे पास। 8 पेयर्स जो बचे हैं उनमें से मैं क्या कर रहा हूँ? एक पेयर सिलेक्ट कर रहे हो, 8C1। तो फिर वही बात हो गई, एक पेयर तो हमारे को लेना ही नहीं है, हमें तो हमेशा 1 by 1 सेलेक्ट करने हैं ये वाले केस में, नहीं? उसमें फिर 1C1 लगा देंगे। नहीं। तो यही वाले केस है, देखो जो लिखा हुआ है 6 केसेस, यही हाँ। बात हो गई ना। पहले मैंने 20C1 से रेंडमली एक शूज सेलेक्ट किया, उसका पेयर बाजू वाले में होगा या उसके बाजू में होगा या उसके बाजू में होगा, मतलब सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्लेस पे मेरे को मिल रहा है, राइट। ठीक, ठीक है ना? हाँ अभी वैसे। तुम्हारी जीनियस बैच की क्लास नहीं है तो हाँ नहीं है सर। हाँ, ड्रॉप कर दो मैसेज, जो भी फ्रेंड्स है आपके, हाँ, यस सर। इधर आके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इज दिस ओके? इज दिस ओके? लेकिन Yes, sir. कहानी में एक छोटी सी बात आप मेरे को बता दो, राइट। कहानी में एक छोटी सी बात आप मेरे को बता दो कि व्हाट इफ आई एम सेइंग वी हैव टू सेलेक्ट
ऑल एट ए टाइम। क्या हो जब इसमें सबको एक साथ में सेलेक्ट करना होता। यू आर गेटिंग 4 shoes and in these 4 shoes you have to get exactly 1 pair. देखिए डिस्कस करें। यस प्रत्युष प्लीज। सर इनिशियली हमारे पास 10 पेयर थे, तो उसमें से एक पेयर हम लोग को सेपरेट कर लेंगे जो जिसका दोनों लेफ्ट और राइट सिलेक्ट करना है, और बचे हुए 9 पेयर्स में से मतलब बचे हुए 18 शूज में से कोई भी 2 शूज सिलेक्ट करना है। 18C2 means you are saying 18 गड़बड़ बोल दी, गड़बड़ बोल दी। हाँ सर 18C1 नहीं सर 9C2 करेंगे डायरेक्ट 9C2 into 4। हाँ 9C2 into 2 square। हाँ सर। ओके ओके ओके। क्या यहाँ पर ऑर्डरिंग नहीं हुई या यहाँ ऑर्डरिंग हो रही है? ऑर्डरिंग नहीं होती। नहीं होगी, श्योर है? अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता 10C3, राइट, अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता 10C3, ठीक है, ध्यान देना यहाँ ये कंसेप्ट के लिए मैं कर रहा हूं ना। 10C3 into 3C1, 10C3 से मैंने 3 पेयर सेलेक्ट किया, उसमें से 3C1 से एक पेयर सेलेक्ट किया जिसके दोनों शूज में ले रहा हूं, राइट, और जो बाकी बचे 2C2 है उनके दो 1-1 शूज ले लिया। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस सर। ओके। क्या इसी को ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अरे तुम लोग कैमरा ऑफ कर रहे हो यार, संडे के दिन ऐसा ना करो। हाँ, काबिल तेरे से ये उम्मीद ना थी। जील, रेना, दारून को तो छोड़ दो, वो बेचारा कोट पहन के इतना अच्छा लग रहा है, तुम लोग क्यों छेड़ दो बेचारे को? वो ट्रेन पे जा रहा है। काव्यम, सर 1 मिनट करता हूँ दूसरे। तो रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट के बाद करना। ये देखो, ये देखो, ये दिखाना मेरे को थोड़ी जरूरी बात है। 10C1 से मैंने एक पेयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 10C1 से मैंने एक पेयर सेलेक्ट कर लिया। व्हाट आई एम सेइंग कि अब मैं किया 18C1 into 16C1। क्या ये सही है? नहीं सर। उत्कर्ष ने हाँ बोल दिया, मैंने देख लिया, मैंने इसलिए कैमरा ऑन करने वाला था। उत्कर्ष एक्सप्लेन। हाँ, और प्रत्युष तुमने नहीं बोला है, वो तो सुनाई दे ही दिया। दोनों लोग को एक्सप्लेन करने हैं। चलो स्टार्ट उत्कर्ष। सर 10C1 में एक पेयर हो जाएगा, फिर बाकी के 18C1 में से 1 shoes and then the 16 shoes remaining, like because we cannot select one more pair, so we can choose the next shoes. ओके, वेरी तो ये गुड। सही है प्रत्युष, व्हाई यू आर सेइंग नो? सर ऑर्डरिंग भी नहीं मैटर करता है, तो दिस इज करेक्ट। सर अगर हम लोग ने 10 में से कोई एक पेयर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद 18 शूज बचे। अब मान लीजिए पहले केस में हम लोग ने एक ए शू सिलेक्ट किया 18C1 और 16C1 में बी शू सिलेक्ट किया। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 18C1 में बी वाला शू सिलेक्ट कर लिया और 16C1 में ए वाला, तो रिपीटिशन हो गया। मतलब ये बोला जाए कि सर हमने चाहते ना चाहते यहाँ पर ऑर्डर कर दिया, ऑर्डरिंग दे दी, फर्स्ट शूज एंड सेकंड शूज, बट मेरे को एक साथ सेलेक्ट करने थे तो कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होना था, तो इसलिए मुझे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना चाहिए। इज दिस ओके? ठीक है,
बात समझ Yes. में आई सबको ना, राइट? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट जगह है, राइट? ये इंपॉर्टेंट जगह है और इसमें गलती होने की मतलब यूजुअली गलतियां होती है। जैसे मैं 10 पेयर्स में से वी हैव टू सेलेक्ट 6, राइट? अभी तक मैं 4 कर रहा था, 6 रूल्स ऑल एट अ टाइम, राइट? एक ही साथ में सबके सब सेलेक्ट करने हैं। फाइंड नंबर ऑफ केसेस when we are getting exactly 1 पेयर। एक बार एग्जैक्टली 1 पेयर, फिर एग्जैक्टली 2 पेयर का करूंगा ना। 2 क्वेश्चन करने हैं, टेक योर टाइम, मैक्सिमम 4 मिनट्स। वाह दारुण, वेरी गुड, कंसेप्ट पकड़ा तुमने। कोशिश करो और कोई तरीके से भी क्वेश्चन लिखने, मतलब इसी चीज को लिखने का। इसी को लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं। ट्राई टू फाइंड दोज मेथड्स, राइट? कि कहाँ से और लिखा जा सके। कंसेप्चुअली इतना हम लोग क्लियर रहे ना कि जहां भी लग रहा हो आराम से लिख। अरे वाह, वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड, तूने एकदम कंसेप्ट पकड़ा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। मजेदार बात क्या बता, अभी तक 4 आंसर आए हैं और सबने जो लिखा हुआ है वो सबने डिफरेंट तरीके से ही लिखा। और यही एग्जैक्टली मेरे को यही चाहिए था कि कंसेप्ट क्लैरिटी रहे। आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? आप पति उसने तो तीनों चेप दिया, 3 मेथड से तीनों लगा दिया। आज कितना घंटा पढ़ा? 2 घंटा पढ़ा है? 2 आवर्स एट स्ट्रेच किया? सर 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा पूरा नहीं हुआ अभी। आज खींचेगा, शाम तक में एक बार कोशिश करेगा ना, हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती वे। आपके सर 4 घंटा दौड़ लेते थे, आज तू बैठ के 2 घंटे पढ़ नहीं सकता? वाह, क्या आप करते हो, बेइज्जती खराब करवाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो लेट्स स्टार्ट। देखें क्या, देखें क्या? तन्मय, 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 हाँ सर, मैं सोने वाला। जो पूरे में इको कर रहा है आवाज, देख रहा है? जल्दी। सर मैंने आंसर चैट में लिखा। हाँ देखा बेटा, वेरी गुड जेना, वेरी गुड दारुण, प्रत्यूष वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, एवरीवन वेरी गुड, उत्कर्ष वेरी गुड। जील ट्राई करेगी बेटा, जील। Now आपने you're playing with the numbers. Wow, very good. आपने जो सेकंड पार्ट दिया था उसका है, वो सही है। हाँ, ठीक है, देखें। सो कौन सा सबसे अच्छा है? जो कर लो वही सबसे अच्छा है। मतलब मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगता, मेरे को जो लगता है 10C5, राइट? जिसमें एक पेयर, राइट, 2 हो गए और 3 डिफरेंट से सेलेक्ट करने होंगे, राइट? तो मेरे को नंबर्स जो चाहिए वो कितने चाहिए थे मेरे को? टोटल 6 चाहिए थे, राइट? तो एक पेयर वाले से 2 आ गए और 4 और आ गए।
राइट। तो 10C5 से 5 पेयर्स पे मैं चला गया, उसमें 5C1 से मैंने कहा कि एग्जैक्टली 1 पेयर वाले को रख लिया। उसके अलावा जो बच गए मेरे पास 4, उसमें 2⁴ से मैं लेफ्ट या राइट वाले को ले। इसी को लिखने के तरीके सबके अलग अलग हैं, राइट। कुछ लोगों ने इसी को लिखा 10C1 into 9C4, राइट, into 2⁴। इसमें ऑर्डरिंग का दिक्कत नहीं आ रहा, देख रहे हो, इसमें ऑर्डरिंग का दिक्कत नहीं आ रहा। जब मैं 10C1 into 9C4 ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, तो इसमें ऑर्डरिंग का दिक्कत नहीं आ रहा। विल एक्सप्लेन व्हाई। मेरे को जो इसमें था, जरूरत जो थी, जिसकी बात मेरे को करनी थी, इसी की बात करनी थी कि फर्स्ट वाला था 10C5 के साथ में और सेकंड वाला 10C1 into है, दोनों में ऑर्डरिंग के डिफरेंस नहीं आ रहे, क्या रीजन है? सर पहले वाले केस में हम लोग सिलेक्ट करें कौन से 5 पेयर्स में से शूज निकलेंगे, और फिर 5C1 में से सिलेक्ट कर रहे हैं कि किस में से क्या बोलते हैं 2 शूज निकलेंगे और बाकी 4 में से एक एक निकलेगा। तो उसमें कहीं भी ऑर्डरिंग नहीं है। और दूसरे वाले केस में 10 में से एक चूज कर रहे हैं जिसके दोनों सिलेक्ट करने हैं, और बाकी 9 में से 4 सिलेक्ट कर रहे हैं जिनका एक एक करना है। मतलब दोनों में कहीं रिपीटेशन वाले केस आ ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में कहीं सिमेट्रिसिटी बन ही नहीं रही, दोनों असिमेट्रिक केसेस हैं, राइट। जब 10C1 से जो जिस तरह के शूज मेरे पास 2 शूज आ रहे हैं और बाकी वाले, तो कोई ऐसा केस नहीं है जो रिपीट हो सकता। दैट्स द रीजन ऑर्डरिंग यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है ना, ठीक है ना। ऑर्डरिंग कब हो जाती? कुछ लोगों ने बहुत प्यार से वो आंसर लिखा है, बहुत अच्छा लगा वो देख के। 10C1 into 18C1 into 16C1 into 14C1, राइट, एंड 12C1, यही आएगा ना, अपॉन फैक्टोरियल से, राइट। 10C1 से पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया शूज, राइट, उसके बाद ये लगा दिया, एक ही बात है, राइट। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन में बोल रहा हूं एग्जैक्टली 1 पेयर की जगह पे एग्जैक्टली 2 पेयर्स, तो आपको अब पता चलेगा ये कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ट्राई करके देखो। वेरी गुड, वेरी गुड यार, इट्स ब्यूटीफुल। देखो मतलब आंसर मैं बता रहा हूँ ना कैसे कैसे लिख के आया हुआ, ये एग्जैक्टली ये चाहिए। 10C2 into 8C2 into 2 square, राइट। 10C4 into 4C2 into 2 square, राइट। 10C2 into 8C2 into 2 square, राइट। तो सबके थॉट प्रोसेस अलग ही चल रहे हैं, लेकिन सबके आंसर्स जो हैं सेम आ रहे हैं, यही चाहिए कि आप प्ले करने लग जाओ जो आपको मेथड सबसे अच्छा लग रहा है। 10C2 into 8C2 into 2 square, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, राइट। 10C2 से पहले 2 पेयर वाले हमने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमने 8C2 से कोई भी 2 नॉन पेयर वाले करके 2 स्क्वायर कर दिया, राइट। सिमिलरली अपना, या एक साथ में 10C4 से मैंने 4 पेयर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन उस 4 में से कौन से 2 हैं जिससे 2 पेयर लूंगा, तो ये भी एक बहुत प्यारा तरीका हो सकता था कि आप लिख रहे हो 10C4, उससे 4C2 मैंने ले लिया, फिर 2C2 वही है, उससे 2 स्क्वायर ले, या
बिल्कुल सही, ये भी बात बोल रहे हो, 10c2 इंटू 8c2 इंटू 2 स्क्वायर, राइट। तो जैसे भी आप चाहते हो, जिस तरह से भी वर्किंग कर पा रहे हो, दैट्स गुड। आई होप एवरीवन इज ओके विद दिस कंसेप्ट, से क्लियर है सबको? इज दिस ओके एवरीवन? इज दिस ओके एवरीवन? ठीक है सबको? तन्मय, यही आंसर आया बेटा आपका भी? हाँ सर। ठीक है, ओके एवरीवन? उत्कर्ष, आर्यन, Yes, sir. ओके ओके ओके। नाउ क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। आई होप यू ऑल नो अबाउट द कार्ड्स, राइट? जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, डायमंड, हार्ट्स, क्लब एंड स्पेड, ऐसे ही होता ना, राइट? इसी में नंबर ए सब में रहता है, राइट? फिर 2 2 2 2 रहता है, ऐसा करते 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 किंग, क्वीन एंड जैक, यही रहता है ना। और इसके ऊपर रहते हैं फिर 10 नंबर्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज। We have to select 4 cards from a pack of 52 cards. Oh, sorry, 5 cards. We have to select 5 cards from the set of 52 cards in such a way, at least 2 cards are there from same suits. At least 2 cards are there from same suits. Take your time. Question. सर सेम At least 2 cards are there, right? In the selection of 5 cards, at least 2 cards are there from the same suit. Suits क्या होता है सब लोग जानते हैं? हाँ सर, वो उसका 4 कलर्स होते हैं, डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट। जो फिगर बने होते हैं ना, वो चारों को सूट्स बोलते हैं हम लोग, ना। सूट 3 4 तरह से अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं, अलग अलग होता है। सूट से एक वो वाला होता है जो धारून पहन के अभी खड़ा था, देखो, हाँ है ना, यहाँ तो ये भी सूट ही कहलाता है। हाँ, एक सूट वो वाला होता है जो सूट, वो स्वीट बोलते हैं उसको शायद ना, तो वो जो हाँ 5 स्टार होटल्स में एक अलग सा बुक करते हैं रहने के लिए, राइट? एक ये सूट्स है। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? We have from the pack of 52 cards, ये 52 cards है total, right? We have to select 4 cards from the set in such a way at least 2 cards are coming from the same suits. At least 2 cards are coming from the same suits.
अब मैंने चैट पे सोल्यूशन मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सच्ची बता रहा हूँ। अब ये थॉट प्रोसेस आप लोग का है कि ये कैसे थॉट प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चन को करते हो। सर मेरा ये थॉट प्रोसेस करेक्ट है क्या? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। तो 1 by 1 करना है या ऑल एट अ टाइम? ऑल एट ए टाइम पहले करते हैं, बाद में 1 by 1 पर आ जाते हैं ना। देखें, ओके, नंबर्स जिस तरह से दिया हुआ है आपको सोचने की जरूरत है। कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? 5, राइट। 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। क्या एक केस आप ऐसा बता सकते हो जिसमें 5 कार्ड आपने सेलेक्ट किया? आपके पास हैं कितने कितने सूट्स? 4 सूट्स हैं। 4 सूट्स हैं और 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा ना। नहीं, ये दो तो एक जगह से आएंगे ही आएंगे। मैंने ये थोड़ी बोला कि किसी एक पर्टिकुलर से चाहिए। आर यू गेटिंग? इज दिस ओके एवरीवन? यस सर। राइट, ये तो सिंपल बात नहीं हो गई कि मेरे को 52 कार्ड्स गिवन हैं एंड व्हाट आई एम सेइंग कि 52C5 से मैं 5 कार्ड अगर सेलेक्ट करूंगा तो हमेशा पॉसिबल है कि 2 कार्ड्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम सूट्स। इज दिस ओके? इज दिस ओके? क्या सही है? काफी लोगों ने आंसर Yes. यस। वेरी गुड, राइट। ओके एवरीवन, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यू हैव टू सेलेक्ट 3 कार्ड्स, राइट? 3 कार्ड्स, राइट? At least 2 clubs are there. At least 2 clubs are there. Club, you know ना club कौन सा होता है? पता जैसे दिखता है। राइट, ब्लैक वाला जो ऐसा बना होता है ना, उसको क्लब बोलते हैं। पेड़ के जैसे जो दिखता है ना। At least 2 clubs must be included out of 3. सर पिछले क्वेश्चन में पहले मतलब 4C1 into 13C2 से आंसर गलत क्यों आता है? 4C1 से आपने सेलेक्ट कर लिया एक, राइट? 4C1 से आपने सेलेक्ट कर लिया एक एंड 13C2 से उसमें से कोई 2 आपने ले लिया, राइट? उसके बाद आप बोल रहे हो कि बाकी बचे जितने भी कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी आप ये सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? मैं पहले एक बार सभी लोगों से पूछ के देखूं। जस्ट अ मिनट एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन जो था, काव्यम इज आस्किंग कि सर अगर मैं इसे ऐसे नहीं सोच के, मैं जो बेसिक सोचा जाता है वही सोच रहा हूँ कि पहले मैंने 4C1 से एक सूट ले लिया, उसमें से 2 कार्ड ले लिए और बाकी बचे हुए जितने थे कार्ड्स, राइट, उसमें से मैंने कितना, 2 चाहिए था, 3 चाहिए था ना, 3 कार्ड ले लिए। क्या ये आंसर गलत क्यों हो गया? और आप सर बोल रहे हो क्या 52C5, राइट? तो ये आंसर और ये आंसर दोनों डिफरेंस क्यों आ रहे हैं? तो आना तो नहीं चाहिए, लॉजिक तो कहीं नहीं लग रहा गड़बड़। कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात? बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, वो आपको निकालना पड़ेगा, सर मैं बोलूं? प्लीज। सर रेपिटेशन हो रहा है इधर, क्योंकि अगर पहले हम लोग ने 13C2 में से उसमें से लिया, फिर बचे हुए 11 में से अगर एक और कार्ड ले लेंगे
तो हम लोग को उसी में मल्टीपल वो मिल जाएंगे केसेस। जैसे 13 में से मान लीजिए हम लोग ने दो सिलेक्ट किया, जे और क्यू, और उसके बाद एक और उसी में उसी सेम सूट का के सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें हम लोग को टोटल 3 डिफरेंट केसेस बन रहे हैं। तो बात ऐसे समझ करके आई? 36 जाएगा। काव्यन? बट एटलीस्ट बोला है ना। हाँ, तो एटलीस्ट बोला। मान लो 4C1 13C2 में आपने जो दो कार्ड ले लिया, वो ले लिया ए डायमंड का और 2 डायमंड का ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हो 50C3 में आपने कोई भी 3 कार्ड ले लिया, तो मान लेते हैं वो क्लब आ गया हो, हार्ट आ गया हो एंड एक स्पेड आ गया हो, ये 3 आया हो, ठीक है, राइट। या इसी में एक डायमंड भी आया हो, ये भी तो है। तो मान लेते हैं डायमंड का 3 आया हो, वो भी केस यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी चीज को सोचो, आपने जब 4C1 × 13C2 लिखा, उसमें डायमंड का A3 पहले ले लिया आपने, और उसके बाद 50C2 से वो वाला कार्ड को फिर से लिया। क्या ये ये दोनों तो ऑर्डरिंग होगा। हाँ यार, दोनों डिफरेंट केस तो है नहीं, ये तो दोनों सेम केस थे। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस जो हैं वो ओवर काउंटिंग हो गई है, दैट्स द रीजन वो थोड़ा सा अलग जा रहा है, ठीक है ना। ना, इसका आंसर देखिए जल्दी से। ये इसलिए तो इतना मजा आता है इन चैप्टर्स में, जहां पर आपको जितने हो सकते हैं पॉसिबल उतने आपको चैलेंजेस रहते हैं। जस्ट यू हैव टू थिंक, नहीं। एटलीस्ट 2 क्लब्स, राइट, 2 क्लब मेरे को चाहिए, राइट। एटलीस्ट 2 क्लब चाहिए। एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा आप कोशिश करें एटलीस्ट वाले क्वेश्चन करने को 2 सेपरेट केस ले ले, 3 ही कार्ड तो लेना है। तो एक बार 2 यहां से ले लेता हूं, इन तीनों में से कहीं एक ले लूंगा, और एक बार 3 यहां से ले लेता हूं, इनको स्किप मार दूं। तो 2 यहां से मैंने ले लिया, राइट। तो पहले तो 2 यहां से लेने का मतलब है 13C2 से ले लिया। बाकी बचे हुए मेरे पास है टोटल कितने, राइट, 39। तो 39C1 से मैंने एक ले लिया, प्लस 13C3। क्या इसमें वो केस नहीं हो रहा, इसमें कहीं वो केस तो इंक्लूड नहीं हो रहा, कहीं इसमें भी तो वही गड़बड़ नहीं हो रही जो पहले हुआ था। नहीं तो सर। मैंने आपको आंसर भेजा था। वेरी गुड। इसमें वो केस 100% नहीं होते हैं, ठीक है ना। ओके, यस। ओके एवरीवन। राइट। तो आई होप ये ऑर्डरिंग वाली कंसेप्ट आप सबको क्लियर होगी, नहीं। ठीक, इसमें कई तरह से डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में बन सकते हैं, राइट। सो जस्ट फॉर द ऑर्डरिंग, राइट, जब भी ऑर्डर मेरे को देना हो या राइट सिलेक्शन प्रोसेस करना हो, उसमें वर्किंग अलग अलग हो सकती है, राइट। सी, ये 9 अल्फाबेट्स जो गिवन है, इसको मैंने राइट दे दिया कि ये कुछ इस तरह से, फिर से ऑर्डरिंग ही दे रहा हूं आपको ना। ये पूरे के पूरे यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनको हमें अरेंज करना है। अरेंजमेंट के लिए मैं क्या चाहता हूँ, ऑल द अल्फास आर ऑलवेज ग्रेटर देन बीटा, मतलब जो पोजिशनिंग होगी अल्फा की पहले होनी चाहिए, बीटा की बाद में होनी चाहिए, राइट। एंड एनी ऑफ द नंबर एंड ऑल दिस अल्फा 1 अल्फा 2 ये जो है आपस में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, इस क्लियर ना, कि सबसे पहले अल्फा 1 आएगा, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3। 2 चीजें मैंने लगाई है। फर्स्ट मैंने लगाया है ऑल द अल्फाज आर कमिंग बिफोर बीटा, राइट। एंड सेकंड मैंने लगाया है ऑल द ए आईज, राइट, ग्रेटर देन AI+1 ग्रेटर देन AI+2, राइट। ये 2 कंडीशन के साथ में आपको बताना है कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे।
9 है ना, 10C2 9 है ना इसमें टोटल। सर काउंटिंग गलत कर दिया। हट, कल मैं आ रहा हूँ, बताता हूँ तेरे को। डन डन। उत्कर्ष, काव्यम, दारुण, लेना, आर्यन जी, कंसेप्ट क्लियर है सभी को? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? यस। हाँ हाँ। काव्यम वेरी गुड। आर्यन थोड़ा सा चेक करो बेटा। नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी क्लोज। उत्कर्ष, आंसर आ जाना चाहिए था तेरा अभी तक। थक गया लगता है आज। Yes, sir, I'm a bit tired. अभी फिजिकल सेंटर पे आएगा, वैसे मिलेगा तो पता चलेगा कि थकना मना है। आए देखें, डिस्कस करें। शुरू करूं क्या? सर एक मिनट। सर हो गया। तन्मय, आंसर लिखो बेटा, आंसर लिखो। हाँ। चैट में आंसर लिखो। दारुण, वेरी गुड। आंसर लिख सकते हो अगर तो लिख दो बेटा।
कैसे भी फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, राइट? एक बार कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो तो ये सब बहुत सिंपल हो जाते हैं। काउंटिंग पे आपको नहीं जाना है, दस सेट काउंटिंग पे आपको नहीं जाना है। स्टार्ट कर लूं? धर्म बहुत सिंपल हो सकता है बेटा, कुछ अधिक जा रहा है। करेक्ट है या फिर और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है? थोड़ा सा बता सकते हो क्या किया आपने? यस सर। तो सबसे पहले मैंने अल्फास को पहले अरेंज करने का सोचा। जो अल्फा 3 है उसके लिए कंडीशन ये है कि वो लास्ट के 3 फीट पे तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जो तीनों बीटास है उसे अल्फा 3 के बाद ही आना होगा। तो सबसे पहले मैंने अल्फा 3 को पोजीशन किया। अल्फा 3 के लिए सिर्फ 3 पॉसिबल केस थे, या तो वो सीट 3 में आए, 4 या फिर 5 में। नहीं नहीं नहीं, वेट करो वेट करो। और ओके कोई? और कोई? सर मैं ट्राई करूँ? प्लीज। हाँ सर, तो पहले तो गामा वाले तीनों टर्म अगर साइड में रखे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा वाले हमेशा बीटा वाले के आगे रहेंगे, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सीरीज में ऑर्डर में रहेंगे, वैसे ही बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ऑर्डर में रहेंगे। तो मतलब उन छह का ऑर्डर जो है हम लोग को पक्का पता चल गया। उनके बीच 7 गैप्स हैं जिनके अंदर हम लोग को तीन जो गामा है उनको भरना है। और गामा, जो तीनों गामा भरते वक्त जो है ऑर्डर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गामा 1 हमेशा गामा 2 के आगे रहेगा, जो गामा 3 के आगे रहेगा। इसलिए बस हम लोग को जो 7 गैप्स है उसमें तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मान के भरना, और आंसर आ जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि इनको अरेंज कर दिया पहले, राइट? यस। कितने पोजीशन पे? कोई भी 6 पोजीशन पे। हाँ सर। तो ये 6 पोजीशन में एक तरीके से ही अरेंज हो रहे होंगे, यस सर। राइट? अब आपने बोला कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है। इनमें गैप बना कितना? 7। 2 3 4 5 6 7, यही गड़बड़ हो गई है। अब गामा 1 गामा 2 गामा 3 को क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर इन तीनों को कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, मतलब अरेंज नहीं करना है इनको, एक्चुअली बस तीन जगह सिलेक्ट करनी है। व्हाट मतलब हाँ व्हाट सर। इफ ये केस आ गया? वो हाँ कहाँ? सर भाई, इसमें बेगर कॉइन लगा देंगे हम लोग। वो केस कहाँ है? गामा 1 गामा 2 इसी गैप में 2 आ गए हैं, या इसी गैप में 3 आ गया, वो वाला केस कहाँ है? तो सर इसीलिए बेगर कॉइन अगर लगाएंगे हाँ। तो 7 ए पहले प्लस बी। अल्फा 7 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। यस सर। ओके ना, देखें देखें काव्यम, एक्सप्लेन। सुनना सब लोग ध्यान से। तो मैंने ऐसे किया कि जो 9 ऑब्जेक्ट्स है या 9 अल्फाबेट्स है उनको पहले अरेंज कर दिया, एंड देन मतलब एक केस में कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 3 ग्रेटर देन बीटा 1 ग्रेटर देन बीटा 2 ग्रेटर देन बीटा 3, तो उनके 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो वो एक केस बनेगा। लेकिन बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो वो मल्टीप्लाई
फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा ना शायद 3 फैक्टोरियल। अच्छा, आपने वैसे रीड कर लिया क्या? नहीं, यहाँ पर ये क्वेश्चन था ना कि कोई भी AI का मतलब है अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 तीनों के लिए ये था, ओह अच्छा। राइट? ये तीनों के लिए था, तो हमने यही सब ने सोचा ना, या और कुछ सोचा आप लोगों ने? क्वेश्चन सेम ना, कि अल्फा 1 अल्फा 2 से आगे, अल्फा 3 से आगे, बीटा 1 बीटा 2 से आगे, बीटा 3 से, बीटा 2 बीटा 3 से आगे, गामा 1 गामा 2 से आगे, गामा 2 गामा 3 से आगे, ये तो है ही, साथ में अल्फा वाले बीटा वाले से आगे रहे, राइट? तो फैक्टोरियल 9 से टोटल को हमने अरेंज कर दिया ना, फैक्टोरियल 9 से टोटल को अरेंज किया, उसके बाद मैंने बोला अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये 6 जो हैं इनके अरेंजमेंट हमें लाइक नहीं आ रहे, ये 6 जो हैं इनके अरेंजमेंट हमें लाइक नहीं आ रहे हैं, इनके अरेंजमेंट मैं खुद करूंगा, तो ये आपस में जितने तरह से अरेंज हुआ उसको डिवाइड कर देता, तो फैक्टोरियल 6 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड तो हो गया, लेकिन अभी गामा 1 गामा 2 गामा 3 भी कहीं कहीं पर होंगे, राइट? तो हमने कहा कि इन तीन गामा का भी जो पोजीशनिंग आपस में इंटरचेंज हुआ होगा वो भी मेरे को पसंद नहीं आ रहा, उनको भी डिवाइड कर देता हूँ फैक्टोरियल 3 से। क्या? हाँ सर, इजी था। हाँ बिल्कुल, एकदम सामने दिख रहा है अब। तन्मय यही किया था, कुछ और? हाँ सर, यही क्या था, बस इसको लिखने का थोड़ा सा अलग वे लिखा मैंने। बात समझा ना, एकदम वन लाइनर था, एकदम एक लाइन में वो गायब हो सकता था, राइट? ना बहुत सारे इसमें वैरायटी आते हैं यार। We have to write down pencil in such a way P will be always ahead of E. ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म दे रहा हूं इसी क्वेश्चन का ना, आंसर कितने फास्ट लिख पाते हो उस पर, उसके लिए ये क्वेश्चन दिया है। ये सबका आज सब लोग थके हारे हैं, चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, एंजॉय। लास्ट क्वेश्चन के आंसर सबके आने चाहिए, लेकिन सबके एक एक करके सब लोग लिखोगे उसके बाद। सर इधर करना है P is greater than E उसका अरेंजमेंट। यस, इन दिस केस P will be always ahead of E, not greater than, its P will be always ahead of E, right? और In NCIL कोई भी इसमें हो सकता है। pencil, yes, the order of that will be always there. Very good Darun, very good Kavyam, very good Patyus, very good everyone. Very good everyone. पर्पल कमेट के जो क्वेश्चंस है मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं, उसको मैं नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, राइट? लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स जो हैं वो मुझे डिस्कस करने हैं। आर्यन क्या थॉट प्रोसेस लगा रहे हो बेटा? सर जैसा हम लोग ने पेंसिल में, हम लोग के पास 6 लेटर्स है तो हम लोग का 6 फैक्टोरियल होगा। हम्म तो हम लोग के नीचे जो है P is always ahead of E, तो उसमें 2 फैक्टोरियल लगता है। हम्म उसके बाद और फिर क्वेश्चन ही नहीं दिया था, बस इतना ही तो क्वेश्चन दिया, तो आपने वहां तक तो कर लिया, ये फैक्टोरियल 4 क्यों कर रहा है? सर वो NCIL के लिए मैं सोचा था। PCIL का तो मैंने ऑर्डर ही नहीं कहा, वो तो जितने तरीके से हो सके वो अरेंज हो सकता है, तो ओनली आई हैव टू थिंक फॉर P and E. So total number of arrangement is factorial 6, डिवाइड बाय right? फैक्टोरियल 2। Divided by factorial 2. Is this okay? यस सर। सर Is this इंटू 4 okay? फैक्टोरियल क्यों नहीं होगा? 4 factorial किस रीजन से बेटा? 6 factorial से तो टोटल अरेंजमेंट हो गए, सर right? लेकिन इसमें हाँ NCIL का ऑर्डर नहीं दिया है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि उसमें 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना था। 6 factorial में तो वो आ चुका ना, 6 factorial में वो अरेंजमेंट तो उसका आ ही चुका है, नहीं? हाँ सर। राइट, वो अरेंजमेंट तो मेरे पास है ही है पूरी तरह से, ओके, यस सर। राइट? सो नेक्स्ट वाले में हम लोग 2023, 2022 एंड 2021, ये 3 साल के जो पेपर्स हैं, तो हाई स्कूल या मिडिल स्कूल? हाई स्कूल का करते हैं क्या, या दोनों का रख लेते हैं, हाई स्कूल एंड मिडिल स्कूल, राइट? बट ये ख्याल रहे कि हम लोग ये कंप्लीट सबका होना चाहिए ना, पेपर में सर शेयर। तो
पर्पल सर मैथ। तो हम लोग को वो टाइमिंग्स देना है मंडे तक, हम लोग का फ्री टाइमिंग्स यार। वो मैं दे दूंगा बेटा, सब कुछ करके मैं आप लोगों को कल मैं पूरा करने के बाद में 2-3 ऑप्शन दे दूंगा, उनमें से एक ऑप्शन हम लोग को पिक कर लेना है बस। ओके हाँ? सर। तो नो वरी। हाँ सर। हाँ आप सर लोग तो हम हाई स्कूल में है या मिडिल स्कूल? मैं बता दूंगा वो भी। हाँ तो पूरा मैं progress मिडिल है। स्कूल में कर पाऊंगा ना सर? हाँ मिडिल स्कूल में आपको एंड आर्यन को भी मिडिल स्कूल में ही रखा हूँ बेटा, आप दोनों का मिडिल स्कूल ही रहेगा। ओके सर। हाँ हम लोगों को चाहिए होगा ना रिजल्ट, ठीक है। यस आ सर। जाएगा आ जाएगा, हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं, क्वेश्चन कोई बहुत खास नहीं सर होते। मैंने 2023 का देखा, क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। नहीं बेटा सर हाई स्कूल आगे के बहुत आई टफ मीन है। लास्ट 4 to 5 हाँ क्वेश्चंस को छोड़ के वही वही बाकी सारे वही चैलेंज बहुत का इजी है। थे। तो हम लोगों को थोड़ा सा उसको डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही करना होगा कि हमारी टीम ऐसी रहे कि हम लोग दोनों चीजें मैनेज हो जाए ना। सर हाई तो स्कूल का 9th टफ वाले है। ग्रेड मिडिल स्कूल है हाई स्कूल है? हाँ हाई स्कूल, हाई स्कूल। हाई स्कूल सर नाइन्थ हाई स्कूल का नाइन्थ पेपर हाई टफ है। टफ। उसके कोई लिए कोई कुछ क्वेश्चंस। नॉलेज चाहिए बेटा, जैसे आपको 3D का नॉलेज चाहिए, राइट, एक। दूसरा नंबर्स का नॉलेज चाहिए, राइट, दो। थोड़े से प्रोबेबिलिटी का नॉलेज चाहिए, तीन। तो ये सब जो है ना 9th 10th में ये रिक्वायर्ड हो जाते हैं, कहीं कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी लगा देते हैं, सर राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दिया था एक्चुअली में बहुत हाँ क्वेश्चंस। हम ये चीजें ना वो यूज करता है, राइट। तो हम लोग को थोड़ा सा अपना जितना भी टाइम है उसमें हम लोग यूज कर पाए, तो इसलिए 2 वीक, नेक्स्ट 2 वीक जो हमारे हैं ना, उसमें व्हाट वी आर डूइंग कि इसके जितने भी हैं जो कंसेप्ट मेरे से हो पाता है, लगता है मैं बता पाऊंगा उतने टाइम पे ना मैं बताता हूँ। हाँ एक अच्छे से तैयारी करके देते हैं बेटा क्या यस सर। ना। सो नेक्स्ट यस सर। लेक्चर पहले इसलिए मैं पहले पेपर आप लोग को भेज दूंगा, एक अटेम्प्ट करके रखना। जो क्वेश्चन में भी दिक्कत रहेगा उसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा विथ थ्योरीज। ओके। यस सर सर। हम्म सर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? वो मैं कर दूंगा धारुन, आप लोगों का, आप लोग हाई स्कूल में रहोगे। हाँ मैं कर दूंगा आप लोग। ओके, तो ठीक बस हम आपको डिटेल्स देने हैं। हाँ वो है मेरे पास है। हाँ मैं जो और कुछ जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा ना। टीम हम लोग ऐसा बना रहे हैं जिसमें कुछ अच्छा हम लोग ये करके हाँ कर पाए, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, चलो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय योर संडे। सॉरी मैंने बहुत सारे आज ही टाइम ले लिया आप लोगों का।